in the first chapter, that is the third level, and this story is written by Jack Finney. This story contains full of lessons, full of learnings, of practical applications, and very useful technique that we should follow these lessons, follow these value points. If we follow, then our life will be normal. But if we forget to follow some lessons that Jack Finney wants to highlight over here, our life may suffer from the problems that Charlie suffers with. Now, question arises. So, in this chapter, we will discuss that the gist of this, story I will tell first, and then main idea I will tell first, and then what are the related facts involved in this, and with that related facts, with that explanation, you will be able to solve the related question from this chapter. Okay, how many characters are there? If I say about it, a list of the characters, name of the chapter is the third level. Then writer is Jack Finney. Okay. Then some of the characters is Charlie himself, Lucia, and then Sam. So these are the character list. Only three characters are there. Now, what happens actually? In this chapter, we see that pivotal character, leading character, Charlie comes back from his multi company and after work, काम धाम करके उस दिन वो थक चुका है, physically and mentally बहुत ज़्यादा disturb हो चुका है, and now he was coming back from his office and now coming back to his home, and his home is in a flat. That means nuclear family. Okay. Now ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, तो इन दिस पिक्चर शॉर्ट वे में टोटल डिस्क्रिप्शन को इन दिस व्हाइट बोर्ड आई हैव tried to copy down, I had tried to note down the entire information in one shot. So what is this? You will come across that this is a Grand Central Railway Station, New York. Okay, and now Grand Central Railway Station, the first railway stations that we should track is referred to that mail train or for express train, means long distant area cover करती है, ठीक है. And then second level refers to that that local train, सब अर्बन ट्रेन मीन्स पैसेंजर ट्रेन जो लोकल एरिया पीपल को लेके आना जाना करते हैं, ठीक है. एंड नाउ चार्ली टेल्स दैट देयर इज ए थर्ड लेवल. चार्ली टेल्स दैट देयर इज ए थर्ड लेवल, बट एक्चुअली थर्ड लेवल होता क्या है यहाँ पे, और थर्ड लेवल फिजिकली भी प्रेजेंट है, थर्ड लेवल प्रेजेंट है भी नहीं है. आपको हम ये चीज का जो है क्लियर कंसेप्ट देंगे. आ जाओ, अगर फिजिकली आप थर्ड लेवल देखना चाहोगे तो फिर आई विल सी दैट मीन्स ये जो हर एक ट्रेन स्टेशन में क्या है, सबवे पाथ है, यानी कि अंडरग्राउंड पाथ है. उस अंडरग्राउंड पाथ से लोग जो कॉमन पर्संस देयर, कॉमन पीपल देयर, तो कॉमन पीपल क्या करते हैं, जिसको जो है रेलवे, हाँ दैट मीन्स ट्रेन से इधर उधर नहीं जाना होता है, लोकल पीपल, तो लोकल पीपल वन एरिया से अनदर एरिया सबवे पाथ से ही आना जाना करते हैं. तो उस दिन क्या हुआ, चार्ली वाज कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस एंड ही टुक शॉर्टकट सबवे पाथ. ओके, देखो एक चीज बता दें आपको, यही सबवे पाथ उनके लिए थर्ड लेवल हो गया, यही सबवे पाथ उनके लिए थर्ड लेवल हो गया. देखो, फर्स्ट लेवल रिफर्स टू दैट दैट ट्रेन लाइंस जहां से मेल और एक्सप्रेस ट्रेन पास होती है. सेकेंड लेवल रिफर्स टू लोकल ट्रेन जहां पास होती है, ठीक है. आ जाओ, नाउ व्हाट हैपेंस, तो नॉर्मल पाथ फॉलो ना करके आज चार्ली फॉलोइंग द सबवे पाथ. और ये सबवे पाथ में जाते जाते हुआ क्या है, सबवे पाथ में जैसे एंट्री किया उस दिन he was very tired, he was very physically disturbed ones, physically and mentally disturbed one, work pressure, workload बहुत ज़्यादा. तो he was trying to reach to his family and he wants to meet with his wife, to get love, caring, affections, to have a cup of coffee, to have a cup of tea, and to have a, you can say that bath, to feel relaxed there. Okay, so he was in hurry to reach to his home. बट क्या हुआ, जैसे ही वो सबवे पाथ में एंट्री लेते हैं, he was following that the subway path and got some angling left. All of a sudden, देखो dim light है यहाँ पे, सबवे पाथ में अक्सर आपको dim light दिखेगा, ठीक है. तो dim light made him to see that there is no passengers, there are no common walkers, there are no persons on the corridors. That means in the subway किसी का फुट स्टेप नहीं दिख रहा था, कोई वॉकर, कोई पर्सन्स को नहीं दिख रहा था, ओनली उन्हीं की फुट स्टेप इको हो रहा था, राइट. दैट मीन्स ओनली ही वाज लिसनिंग द फुट स्टेप ऑफ हिज ओन वॉकिंग. ही स्टार्टेड गोइंग इन. मान लो आप क्योंकि यही रास्ते से उन्होंने एंट्री मारा और इनको यहाँ पे निकलना है, ठीक है. तो जैसे उन्होंने एंट्री मारा तो फिर क्या हुआ, आगे जाके उन्होंने क्या देखा, व्हाट ही हैड वॉच्ड
कभी ये बोलते हैं कि दैट ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है एक ट्री की रूट्स की तरह है, एक बिग ट्री की रूट्स की तरह है, यानी कि इसकी जो सबवे पाथ है, आप एक एंट्रेंस से आप एंट्री मारोगे तो कोई श्योर नहीं कि आप इधर ही निकलोगे, आप कभी इधर चले जाते हो, कभी इधर चले जाते हो, राइट। तो राइटर को लगता है कि इतने सारे नोक्स एंड कॉर्नर्स है, इतने सारे एंट्रेंस एंड एग्जिट पॉइंट है सबवे पाथ में, कि राइटर को लगता है कि दैट मींस इट्स ए बिगर ट्री, और ये सारे जो है ट्री का जो लूप्स एंड होल्स है, रूट्स हैं। ओके, आ जाओ, छोड़ो फिर। होता क्या है, देखो वो उस दिन थका हुआ था, कौन? चार्ली। चार्ली थका हुआ था, मेंटली ही वाज ट्राइंग टू गेट रिलैक्स। लेकिन जैसे ही वो आगे चलता है, आगे बढ़ता है, तो उनके सामने जो है दिखने लगता है समथिंग डिफरेंट लुक, वही सबवे पाथ, दैट मींस एक कॉरिडोर लाइक जो लुक जो है। अच्छा, कॉरिडोर में क्या है? ओनली डिम लाइट इज देयर, और कॉरिडोर में जो है उनके सामने कुछ विजिबल होने लगा, धीरे धीरे लोग भी दिखने लगा, धीरे धीरे सारे काउंटर, शॉप्स, स्मॉल स्मॉल रूम्स भी दिखने लगा। अजीब हरकत है, अभी तो बता रहे थे कि कॉरिडोर में कोई नहीं है, सबवे पाथ में कोई नहीं है, वो खुद अकेले ही जो है ओन फुटस्टेप सुन रहे थे। बट अब क्या हो गया? ही हर्ड हिज ओन फुटस्टेप्स, देन ओपन गैस लाइट, फ्लिकरिंग लाइट। जैसे ही वो आगे बढ़ते गए तो फिर उनको ओपन गैस लाइट दिखने लगा, और वो लाइट फ्लिकरिंग लाइट दिख रहा था, जैसे कि यू कैन से दैट कोई लाइट अगर खराब हो जाए तो फिर क्या हो रहा है, अप एंड डाउन करता है ना, तो दैट मींस दैट फ्लिकरिंग लाइट। एंड देन मेन, अब धीरे धीरे लोगों को दिखने लगा, हाँ, लोग, जेंटलमैन एंड लेडीज, ऑल दीज पर्सन्स वेयर अवेलेबल देयर। अब इनको कुछ देर बाद जो है लगने लगा है कि दैट मींस यहाँ पे सब लोग भरे हुए हैं, और वो लोग है दैट मींस सच पीपल बिलोंग टू ओल्ड एज। I mean to say that about 130 years ago। आज की डेट में मान लो, आज की डेट में आपका 26 है, और फिर उनको दिखने लगा अबाउट 1890s की तरह दिखने लगा लोग, यानी कि हाउ मेनी इयर्स? 6 3 और फिर अबाउट 130 इयर्स के आसपास के पहले की लोग दिखने लगा, राइट। तो 130 इयर्स के पहले जैसे के लोग दिखने लगा। अच्छा, वो लोग ऑल ऑफ ए सडन विजिबल होने लगा, ठीक है। मेन विथ ए हैट, बड़े बड़े हैट पहने हुए, डार्बी हैट पहने हुए हैं, विथ ए 4 बटन सूट। पहले जमाने में जो लोग जो है सूट पहनते थे, दैट मींस कोट पैंट, ओके, तो उसमें 4 बटन हुआ करते थे। आज की डेट में जो है, आज का जो फैशन है 2 बटन 1 बटन कोट है। अच्छा, विथ ए लैपेल, टाइनी लैपेल, यहाँ पे लैपेल होता है, ठीक है, और फिर हैंडल बियर मुस्टैच, ओके। तो ऐसे टाइप के दैट मींस जो थोड़ा सा हीरो टाइप के होते हैं, या फिर यू कैन सी दैट फिल्म इंडस्ट्री में आपके हैं, कई ऐसी फिल्म में दिखा है कि उनका नाम क्या है, वो सेलिब्रिटी जो दीपिका पादुकोण के हस्बैंड है, रणवीर सिंह है परहैप्स। तो रणवीर सिंह जो कभी कभी किसी फिल्म में ये दिखने को मिल जाता है, ठीक है। तो हैंडल बार, हाथ से जो है ताव देने वाला जो है मुस्टैच है। वीमेन विथ मटन स्लीव ड्रेस है, एक ओल्ड ट्रेडिशनल ड्रेस है, और विथ फ्रॉक, दे आर विथ फ्रॉक ऑल्सो। नाउ फनल शेप्ड लोकोमोटिव्स, और वो लोकोमोटिव्स जैसे कि 100 इयर्स अगो ब्रिटिशर्स जैसे हर कंट्री में क्या डेवलप किए थे, इवन इंडिया में भी ऑल्सो। तो जो स्टीम इंजन टाइप का जो लोकोमोटिव है, ओके, तो लोकोमोटिव्स का वो जो फनल शेप्ड वी शेप्ड जो स्ट्रक्चर है, वो भी ब्रश मेटल से जो है बना हुआ है, वो भी दीवार के इसमें दिखने लगा, दीवार में रखा हुआ है, ऐसे लगने लगा, एक म्यूजियम की तरह जो है वो बना हुआ है। यानी कि उनके लिए ये कॉरिडोर अब क्या हो गया, टोटल एक गैलरी बन गया, गैलरी बन गया, एक लाइव गैलरी बन गया। Not only this, he started moving ahead and found there were रेपिशन जो गैलरी में है, नीचे चलते चलते कुछ जो है न्यूज़पेपर सेलिंग बॉय होते हैं ना, तो न्यूज़पेपर, वन बॉय वाज सेलिंग न्यूज़पेपर। इन दैट न्यूज़पेपर, यू नो व्हिच न्यूज़पेपर वाज पॉपुलर देयर, द वर्ल्ड। और उस वर्ल्ड का न्यूज़पेपर में दैट फ्रंट पेज में लिखा हुआ था 11 जून 18, पे अटेंशन हियर एंड नाउ। उस लेटर में, सॉरी, उस न्यूज़पेपर में बेटा जो फ्रंट पेज में जो खबर छपा हुआ था, वो था प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में, हाँ, उस वक्त नहीं छपा हुआ था। तो उसने पेपर भी खरीदा, पेपर खरीदने के बाद जो है क्या पढ़ने लगे, न्यूज़ पढ़ने लगे, ओके। और उसके बाद उनको दिखने लगा क्या है, एक टिकट काउंटर, छोटा छोटा स्मॉल टिकट काउंटर, जैसे कि आज की डेट में आप जाओगे तो फिर रेलवे स्टेशन में तो देखोगे कि टिकट काउंटर्स आर देयर, दैट मींस दे आर सेलिंग द टिकट्स फॉर गोइंग टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उन्होंने सोचा कि अरे यार, आई हैव कम टू ओल्ड टाइम्स, आई हैव कम टू दैट ओल्ड टाइम्स। तो हमारा तो बहुत पुराना सपना है, गेल्सबर्ग इलियनॉइस जाएंगे। और वो गेल्सबर्ग इलियनॉइस जो है आज से, आज की डेट में यानी कि 2026, हाँ, अगर आज की डेट से 100 इयर्स बैक में हम तो सुने थे, हम तो पढ़े थे, वो गेल्सबर्ग इलियनॉइस एक बहुत ब्यूटीफुल जगह है, वेरी ब्यूटीफुल जगह है। वहाँ पे 100 इयर्स अगो लोग जो है
big आधा दिन, that means half of the day they work and half of the day they enjoy passing their time sitting on that, sitting under a big tree, and there was a green land, there was a park field. Okay, और मेन क्या करते थे, मेन सिगार पीते थे, और women that means they move their fan that was made of leaves, जिसको कहते हैं कि palm leaves से बना हुआ जो है पंखा से, औरत लोग क्या करती थी, हवा that means अरेंज एयर, और फिर जो है जेंट्स लोग क्या करते थे, सिगार पीते थे। ओके, और फिर बच्चे लोग जो है खुले आम जो है खेलते थे। ओके, कभी जो है पेड़ का जो ब्रांचेस, कभी ब्रांचेस, वही जो लॉन्ग एंड लार्ज ट्री के जो ब्रांचेस जो है कभी जमीन छू जाता था, तो फिर उस पे बच्चे लोग जो है चढ़ के एंजॉय करते थे। वहां पे लोगों का कोई टेंशन नहीं हुआ करते थे। तो ये सारे जो ब्यूटीफुल अट्रैक्शन उनके मन में था, किसके मन में हुआ करते थे, चार्ली के मन में। अच्छा, जैसे कि हम लोगों को भी एक कोई ड्रीम प्लेस होता है ना, कि हाँ अगर मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा, छुट्टी मिलेगा, तो फिर हम लोग भी जाएंगे। तो ऑल ऑफ ए सडन उस दिन उन्होंने सोचा है कि हमें तो जाना ही था, ओल्ड टाइम में जाना ही था, पुराना अगर ऐसा मौका मिलता तो हम उस प्लेस को, इलियोनिस को घूम के आते, गेल्सबर्ग को घूम के आते। लेकिन जैसे उन्होंने टिकट काउंटर के पास अप्रोच किए, टिकट क्लार्क, उन्होंने, साहब हमें भी 2 टिकट दे दो, एक टिकट तो मेरे लिए और एक टिकट मेरे वाइफ के लिए, 2 टिकट दे दो। तो क्लार्क जो है ना ऐसे करके तक, मिस्टर बेटा, डू नॉट ट्राई टू स्किन मी, अदरवाइज यू विल नॉट गो फार, I am telling you, you will be arrested by the police. This is not the, this ain't the money. I don't want modern money, modern currency. I want old currency. Go back. If you want to take ticket, then bring old currency. और नहीं तो बेटा भाग जाओ, निकल लो यहाँ से. Otherwise, you will not go far. I will call police. बाबा रे बाबा, कौन? इधर चार्ली जो है इनकी बात सुनकर के क्या हो गया, घबरा गए। अरे शिट, यानी कि यहाँ पे टिकट लेने के लिए, अब गेल्सबर्ग इलियोनिस जाने के लिए हमें क्या करना होगा, गेल्सबर्ग इलियोनिस जाने के लिए हमें ओल्ड पैसा लाना होगा, ओल्ड करेंसी लाना होगा। तो यहाँ पे देखो एक्शन एंड रिएक्शन ये दिखाए हैं कि वो टिकट बुक करने की कोशिश किए और गेल्सबर्ग जाने के लिए, और फिर क्या हुआ, द क्लार्क ने उनको थ्रेट कर दिया, बेटा भाग नहीं पाओगे, और डू नॉट ट्राई टू स्किन मी आउट, डू नॉट ट्राई टू चीट मी हियर, ओल्ड करेंसी चाहिए। खैर वहां से कॉरिडोर से जो है वो घूम घाम करके उस दिनों घर चले आए। घर में जाके फिर दैट मींस ही वाज वेरी मच साइलेंट, ही टुक रेस्ट एंड he did not to Lucia on that day। अच्छा, हर हस्बैंड का एक वो होता है ना कि सरप्राइजिंग एपिसोड होता है। तो उन्होंने सोचा है कि जब मिसेस को हम टिकट जब बन जाएगा तभी हम मिसेस को इन्फॉर्मेशन देंगे और उनको लेके जो है वो भी खुश हो जाएगी। तो उस दिन उन्होंने कुछ नहीं बताया है। नेक्स्ट डे क्या हुआ, उस दिन तो शाम हो गए, नेक्स्ट डे उन्होंने डायरेक्टली ऑफिस ना जाके बैंक में पहुंचे। बैंक में जाके उनका जितने सारे बैंक बैलेंस हुआ करते थे, सारे बैंक बैलेंस को देखने, सारे अमाउंट को उन्होंने कन्वर्टेड इनटू ओल्ड करेंसी, कन्वर्टेड प्रेजेंट करेंसी इनटू ओल्डर करेंसी, और फिर उसी दिन पैसा को ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट करके फिर दोबारा उसने साबोए पाथ पकड़ा। साबोए पाथ से फिर जो है जाने लगा। अब वो साबोए पाथ में जाकर के फिर ढूंढ रहा है, चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। हाँ, यही तो क्लार्क, अरे यही तो टिकट विंडो था, अरे यही तो वो स्पेक्टिकल पहने हुए थे, ऐसे हमारी तरफ ताक रहे थे और हमें थ्रेट किए जा रहे थे। वेयर इज दैट पर्सन? नो, कहाँ गए सब? यहाँ पे फ्लिकरिंग लाइट भी नहीं है। अरे यही तो मैंने देखा था न्यूज़पेपर सेलिंग बॉय है। सो ही गॉट सरप्राइज्ड, कोई भी नहीं है। एक दो का जो है लोग पैसेंजर्स आ रहे थे जा रहे थे जैसे कि नॉर्मल। हाँ, तो ही वाज फ्रस्ट्रेटेड कि टिकट विंडो कहाँ है, दिस एंड दैट, ये सारे क्वेश्चन लेके। अब उस दिन वो फ्रस्ट्रेट होके रिटर्न गए, कहाँ पर? अगेन ही वेंट बैक टू हिज फ्लैट में। जाके क्या हुआ, फ्लैट में जाके अब इस वक्त जो है जाके वो लुइसा को सारे बात बताए। अब लुइसा को जाके सारे बात बताए, देखो लुइसा आज हमारे साथ ये हुआ, हम ये चीज करने की कोशिश की। नाउ शी इनवाइटेड सैम। लुइसा को समझ में आ गया था दैट मींस दिस पर्सन नाउ सफर फ्रॉम सम डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर। तो चार्ली का एक दोस्त है जो कि साइकेट्रिस्ट है, तो मतलब पहले से स्टोरी के लिए नहीं है। लुइसा भी एजुकेटेड गर्ल है, तो लुइसा ने सोचा है कि बेहतर ये है कि दैट मींस शाम को बुलाया जाएगा, बिगिनिंग स्टेज है, थोड़ा सा क्या है क्या नहीं है वो भी समझेंगे, कुछ सलाह देंगे और फिर प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड आउट। ओके, अभी यहाँ तक क्लियर है? नाउ चार्ली नाउ सफर्स रियली फ्रॉम दैट इंसियन कंडीशन, क्रेजीनेस। अब फिर क्या हुआ, थोड़ी सी पागलपन, थोड़ी सी डिसऑर्डर डेवलप हो गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ है, ये हम बताएंगे फिर। और फिर जो है सैम ने क्या किया, इनका सिम्टम्स रीड करने के बाद ऑल ऑफ ए सडन जो है 2-1 दिन इनके साथ बात किया
ऑल ऑफ ए सडन यहाँ से जो है बेटा कुछ दिन से जो है डिसअपियर हो गया, अबाउट 10 डेज 12 डेज अबाउट 2 वीक्स जो है डिसअपियर हो गया, बीच में आया ही नहीं है उसने, ठीक है, बीच में आया ही नहीं है। और अब जो है चार्ली घर से बाहर नहीं निकलता है। चार्ली दैट मींस ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन, थोड़ी सी मेडिसिन वगैरह लेते हैं, दिस एंड दैट करते हैं। अच्छा, चार्ली का एक बहुत बड़ा हॉबी हुआ करते थे, दैट मींस स्टैम्प कलेक्शंस। स्टैम्प कलेक्शन यानी कि जो वही जो पोस्टेज स्टैम्प जो पोस्टल ऑर्डर पे लगाया जाता है या कि एनवेलप पे लगाया जाता है, आप लगाओगे तभी जो है लेटर एक जगह से एक सिटी से दूसरी सिटी जाएगी, ठीक है। तो वही स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे। नाउ इनके दादा के भी जो है क्या नाम है हॉबी ऐसा ही हुआ करते थे, दैट मींस स्टैम्प कलेक्शंस। इसमें एक फर्स्ट डे कवर है। फर्स्ट डे कवर रिफर्स टू दैट जो लोग लवर ऑफ स्टैम्प कलेक्टर्स है, स्टैम्प कलेक्शन है, तो फिर ये क्या करते हैं, जिस दिन कोई स्टैम्प पब्लिश होने वाला होता है उसी दिन क्या करते हैं, एक एनवेलप परचेज करते हैं। उस एनवेलप में जैसे ही वो पब्लिश हो गया उसी दिन वो स्टैम्प परचेज करके अपना एनवेलप में चिपका करके दैट एड्रेस, अपना एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस लिखने के बाद जो है पोस्टमैन से स्टैम्प लगा लेते हैं और वही वाला स्टैम्प परमिशन वही वाला जो है एनवेलप अपने पास रख लेते हैं। कैसे कि जिस दिन, अच्छा, उस एनवेलप में जो एड्रेस होती है वो सेल्फ एड्रेस है। सेल्फ एड्रेस होगी तभी ना वो लेटर मेरे पास जाएगी। फिर सेल्फ एड्रेस लिखा हुआ है और उसके बाद जो नया जो है आपका जो स्टैम्प निकला पब्लिश हुआ उस स्टैम्प को चिपका करके जो है मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिए। अच्छा, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा एक दिन बाद जब जो है दैट मींस वो लोग ओपन करेंगे, पियोन लोग क्या करेंगे, स्टैम्प मारेंगे, डेट, तो वो जो डेट, इशूइंग डेट ऑन द स्टैम्प, और दिस लेटर वाज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर। ओके, तो इनको भी जो है बहुत शौक हुआ करते थे। कभी आप अपसेट होते हो, कभी आप मेंटली टायर्ड होते हो, फिजिकली डिस्टर्ब होते हो, ठीक है, तो फिर क्या करते हो, सपोज किसी का हॉबी है कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, किसी का हॉबी है कलेक्शन ऑफ बुक्स, किसी का हॉबी है लिसनिंग टू म्यूजिक, तब वो हॉबी कलेक्शन में पहुंचते हैं। तो हॉबी दैट मींस वो स्टैम्प कलेक्शन वाला सारी चीजें उनके कलेक्शन वो देख रहे थे, सोच रहे थे। एक दिन ऑल ऑफ ए सडन ही फाउंड, चार्ली डिस्कवर्ड ए लेटर। उसी फर्स्ट डे कवर की पाइल में उनको एक लेटर मिल गया और लेटर वाज रिटन इन दैट स्टाइल, जुलाई 1894, और फ्रॉम किस जगह से लिखना है, फ्रॉम 941 व्हीलर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग इलिनॉइस। अरे गेल्सबर्ग इलिनॉइस, ये तो उनका ड्रीम प्लेस है। गेल्सबर्ग इलिनॉइस तो ड्रीम प्लेस है। ये कौन आया है? ओके, नाउ ये एड्रेस देखे और फिर जो है, और जैसे ओपन किया लेटर, और ओपनिंग लेटर में दैट मींस चार्ली वाज एड्रेस्ड, उसमें लिखा हुआ है, चार्ली, फॉर 2 वीक्स आई हैव कम टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस डाउन द स्ट्रीट एट डेलीज। ये एक जगह का नाम है, गेल्सबर्ग इलिनॉइस में एक जगह का नाम है। यू मे से दैट a restaurant like place, a bar like place. Oh friend, I can watch someone is playing piano there. I can also watch that someone are sing Nelly Home. मैं देख रहा हूँ कुछ लोग गाना गा रहे हैं, कुछ लोग डांस कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग पियानो बजा रहे हैं। ओए माय फ्रेंड, you and Luisa come to have a lemonade. I am also been invited there as lemonade. I am invited over for a lemonade. मुझे भी किसी ने यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स, लेमोनेड सॉफ्ट ड्रिंक्स पे क्या किया है, मुझे इनवाइट किया है। माय डियर फ्रेंड्स, तो ही तो मेरा जिगरी दोस्त हो, आजा। और यू हैव बीन सर्चिंग फॉर ना, तुम्हें भी तो बड़ी शौक है ना, ड्रीम प्लेस तुम्हारा भी है ना। मैं तो आ गया हूँ यहाँ पे, और मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आई एम एंजॉइंग दैट दिस काइंड ऑफ रेस्टोरेंट लाइक बार लाइक प्लेस। ओके, यहाँ पे देखो कोई पियानो बजा रहा है, कोई गाना गा रहे हैं, गाना दैट मींस सिंग नेली होम, ये वाला जो गाना गा रहा है, मैं भी इनवाइटेड हूँ, तू भी इनवाइटेड हो जाओ ना, मिसेस को लेके आ जाओ ना। तो कम ऑन, कम बैक चार्ली, लुइसा, नाउ कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल। और अब ढूंढते रहो। देखो यहाँ पे लास्ट में आके जो है, अब ये थर्ड लेवल की बात इसने क्यों कहा, चलो ठीक है, यहाँ तक तो इन्विटेशन ये है, ये थर्ड लेवल, कीप लुकिंग, ढूंढते रहो, कीप लुकिंग थर्ड लेवल टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल। नाउ बिलीव मी, मुझे विश्वास करो, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब दिस स्टोरी इज ऑलमोस्ट कम टू एन एंड। लेटर पढ़ लिए, लेटर के बाद एक छोटा सा पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में चार्ली स्टार्ट थिंकिंग, यार वो तो मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, वो व्हीलर्ड स्ट्रीट और यू कैन से गेल्सबर्ग इलिनॉइस में तो जाने की बात थी, ठीक है, बट ओल्ड बिजनेस था इनका, कहीं ओल्ड बिजनेस हुआ करते थे, दैट मींस ओल्ड बिजनेस को लेके, ओल्ड दैट मींस वही डॉक्टर नहीं बने थे तब जो है ओल्ड कुछ बिजनेस किया करते थे, उस बिजनेस के पर्पज में गए हैं, या फिर और सम अदर रीजन। और अगर बिजनेस करने गए हैं तो फिर कह रहे हैं कि 2 हफ्ता हो गया, दैट मींस 2 वीक्स, फॉर 2 वीक्स ही इज एंजॉयिंग देयर। यहाँ पे बार में बैठ के क्या कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में बैठ के क्या कर रहे हैं वहां पे,
ये मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, ये दरमिशन में मेंटल डॉक्टर भी हैं। तो यहाँ पे ये सोचने लग गया है। उन्होंने ये भी सोचा है कि कीप लुकिंग फॉरवर्ड, कीप लुकिंग थर्ड लेवल। ये थर्ड लेवल की बात क्यों कहा रहा है ये? तो देखो लास्ट पार्ट में आके जो है ये थॉटफुल वर्डिंग्स किसने दिया? सैम ने चार्ली को मजबूर कर दिया, सोचने में मजबूर कर दिया, और यही इसका टेक्निक्स है। अब आ जाओ हम बताते हैं ये चार्ली ऐसा लेटर क्यों लिखा। चार्ली ऐसा लेटर इसलिए लिखा है, अब पॉइंट बताते हैं हमको। चार्ली ऐसा लेटर इसलिए लिखा है, सॉरी सैम ने, कि सैम को मालूम है, क्योंकि ये चार्ली इस वक्त इनसेन माइंड लेके घूम रहे हैं। इनसेन मीन्स डिसऑर्डर्ड माइंड लेके घूम रहे हैं। तो ये डिसऑर्डर्ड माइंड लेके जब ये घूम रहा है, तो यानी कि आप एक चीज देखे हो, कभी जो मेंटल पेशेंट को कभी आप प्रैंक करोगे, प्रिक करोगे, तो और ज्यादा बैड कंडीशन हो जाता है। या फिर इवन कि कोई शराबी ड्रंकर्स जब वो ड्रिंक कर लेते हैं, तो उस वक्त उनको कूल करने के लिए आप क्या करो? उनको कूल करने के लिए थोड़ा सा वो जो बोल रहे हैं हर बात पे आप एक्सेप्ट करते जाओ, हाँ में हाँ मिलाते जाओ। जैसे आप देखोगे, जैसे आप उसको नेगेट करोगे, तो फिर और वो ट्रिक हो जाएगा, और वो सीरियस हो जाएगा, और वो फिर वायलेंट होने लगेगा, राइट? तो सैम ने भी ठीक यही फॉर्मूला अप्लाई किया। ये लेटर उसने जो ड्रॉप किया है, 1 हफ्ता 2 हफ्ते बाद ड्रॉप किया है, तब तक माइंड थोड़ा सा नॉर्मल होने जा रहा है। और वो फ्रेंड भी हैं। अच्छा, फ्रेंड वो लोग होते हैं जो दूसरे फ्रेंड का मिस्टेक को बड़ी माइल्ड वे में, बड़ी ट्रिकिंग वे में बताता है। आ जाओ, ये जो लेटर एक्चुअली इनके दिल दिमाग में क्या भरा है? किसकी? चार्ली के दिल दिमाग में ड्रीम प्लेस है कि हाँ कभी अगर मौका मिले तो फिर कहां जाएंगे? वो गिल्सबर्ग इलियनोस में जाएंगे। तो जब सबसे पसंदीदा जगह है, ना इसको खाने की कोई शौक है, ना इसको कोई चीज देखने की शौक है, हाँ देखने की शौक है तो फिर एक जगह विजिट करने की शौक है। एक ड्रीम प्लेस बना हुआ है, एक ड्रीम डेस्टिनेशन बना हुआ है। तो वो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने भी सोचा, स्टैम्प कलेक्शन का वो है, हॉबी है, एक लेटर लिखा जाए, ऐसा एक बेहतरीन प्री प्लान लेटर लिखा जाए, और उस लेटर में ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया जाए ताकि ऑल ऑफ ए सडन जो है इनका माइंड क्या हो जाए? अट्रैक्टेड हो जाए। और फिर वहां पे लास्ट में जाके ये जो सेंटेंस दिया है उन्होंने, क्या है? कीप लुकिंग टिल यू फाइंड थर्ड लेवल। यानी कि ये वर्ड पिंचिंग वर्ड है। ये वर्ड उनको रिबैक नॉर्मल थिंकिंग में ला सकता है, ऐसी वाली वर्ड है। बेटा सर्च करते रहो, ढूंढते रहो, लेकिन तुम थर्ड लेवल से ही आ पाओगे। तो जब चार्ली ये लेटर पढ़ रहे थे, सारी चीज इनको तो अच्छा लगने लगा। लास्ट में आगे जो कीप लुकिंग फॉरवर्ड टिल यू फाइंड थर्ड लेवल, ये सोच में पड़ गया है कि ये थर्ड लेवल से आने की बात कर रहे हैं। यार अभी 2 हफ्ता पहले था, ये 2 हफ्ता पहले, और ये डेट, ये ओल्ड टाइम में उसने कैसे गए? कैसे पॉसिबल है? मैं प्रेजेंट टाइम में हूं, और ये जो ओल्ड डेट है, इतने 130 ईयर्स अगो, 136 ईयर्स अगो में जाके वो मुझे वहां से इनवाइट कर रहा है। यार क्या मैं पागल हूं? मैं क्रेजी हूं? मुझे इनवाइट कर रहे हैं, वो भी इस डेट में, और आज के डेट से। मेरे दोस्त, तू ग्रेट हो, तू साइकेट्रिस्ट हो, यानी कि मुझे थोड़ा सा क्या हुआ? डिसऑर्डर हुआ। हाँ, ये लेटर तुम बना करके भेजे हो ताकि मैं थोड़ा सा पॉजिटिव सोचूं, थोड़ा सा दिमाग से सोचूं कि ये लेटर प्रेजेंट टाइम में रहते हुए मैं कैसे। ओहो, थैंक यू माय फ्रेंड, थैंक यू सैम वेनर, यू आर रियली माय साइकेट्रिस्ट। तो ये देखो लेटर, सॉरी ये देखो आपका स्टोरी हो गया। अब स्टोरी से एक चीज है कि चार्ली को आज हेलुसिनेशन टाइप क्यों दिखा? सबवे पाथ में जाते ही उनको सारी चीज और दिखने लगा था। इवन कि न्यूज़पेपर, दैट मींस दिस न्यूज़पेपर भी उनको दिखने लगा था, द वर्ल्ड न्यूज़पेपर भी दिखने लगा था। आखिर ऐसा क्यों था? क्यों हुआ? तो देखो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इंसान क्या है? सोशल एनिमल है। ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स। सोसाइटी में रहता है, ठीक है, ग्रुप के साथ रहता है, ओके, और ग्रुप के साथ रह करके उनकी प्रॉब्लम, उनकी जरूरतें जो है शेयर करते हैं, फील करते हैं, नीड पूरा करते हैं, और फिर एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, एक दूसरे की दुख दर्द में जो है शामिल होते हैं, गैदर होते हैं। तो फिर क्या होता है? आपने दिल दिमाग में कोई टेंशन या फिर कोई ड्रीम प्लान ऐसा कोई डोमिनेटिंग वे में नहीं बैठा रहता है ना। एक नॉर्मल टेम्पर होता है, ह्यूमन टेम्परामेंट नॉर्मल होती है। नाउ क्या हो रहा है? प्रॉब्लम कहां हो रहा है? आज की डेट में बेटा अपना हर लोगों का एक स्टेटस सिंबल, स्टेटस प्रॉब्लम आने लगा। वो क्या है कि मैं और भी ग्रो करूंगा, आई विल ग्रो माई सेल्फ, आई विल बी पॉपुलर वन, आई विल बी फेमस वन, नाम से, शोहरत से, गाड़ी से, व्हीकल से। ओके, नाउ लोग क्या करने लग रहे हैं? लोग ड्यूटी से ओवर ड्यूटी करने लग रहा है, ड्यूटी से ओवर ड्यूटी करने लग रहा है। देखो यहाँ पे चार्ली भी कहां पे, किस कंपनी में काम करता है? मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है।
और ये काम करने के सिलसिले में जो है कि दैट मींस अब ये जॉइंट फैमिली से आया है कहां पे, न्यूक्लियर फैमिली में, और इसके इनके न्यूक्लियर फैमिली में बेटा कोई नहीं है, देयर इज नन देन हिज वाइफ एंड ही हिमसेल्फ। इनका टारगेट क्या है, इनका टारगेट है, हो सकता है टारगेट है कि ग्रो मोर, कलेक्ट मोर मनी। तो क्या करता था मिशनो, ऑफिस जाना और ऑफिस से आना, ऑफिस जाना ऑफिस से आना, यानी कि ही हैज कन्वर्टेड हिज लाइफ इनटू मशीन। यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन, लोगों के साथ मिलना, दोस्त यार के साथ टाइम पास करना, बिल्कुल ये कट कर रखा है, सैक्रिफाइस कर रखा है। किसी की प्रॉब्लम को सुनना, किसी की दुख दर्द को सुन करके दैट मींस सलाह देना, सॉल्यूशन देना, या फिर अपने प्रॉब्लम को किसी के सामने बता करके सॉल्यूशन लेना, ये चीज तो इनको चार्ली ने कंप्लीटली भूल चुका है। अच्छा, चार्ली जब ये सारी चीज को भूल चुका है तो यानी कि क्या हो गया, यानी कि इनके दिल दिमाग में दैट मींस बिल्कुल सोशल पॉइंट्स है ही नहीं। जब इंसान सोसाइटी से अलग हो जाता है, अलोन हो जाता है, तो वो हाफ मैड हो जाता है। वंस मोर, यहाँ पे देखो ये सोसाइटी में है, क्राउड के बीच में से आना जाना करते हैं, लेकिन ये किसी से कॉन्टैक्ट, सोशल इंटरेक्शन करने का टाइम नहीं है, फ्री फ्रैंक बात करने की टाइम नहीं है। जब इंसान को फ्री एंड फ्रैंक वे में बात करने की टाइम नहीं है, लव शेयर नहीं कर पा रहा है, ना किसी का केयरिंग उनको मिल रहा है, तो इंसान क्या हो गया, आधा पागल हो गया। अच्छा, ये जो लोनली का शिकार है, ये कौन लोनली पर्सन हो गया है, ये भीड़ में भी अकेला हो गया है, कौन, चार्ली, डैम श्योर। और इसी में इनकी माइंड में एक सपना लेके घूमता है ये, काश मॉडर्न टाइम में इतना भीड़ भाड़ है, इतना क्राउड है, इतना वर्कलोड है, नो टाइम फॉर लव, नो प्लेस टू फील, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। वो वर्क करते हैं, वर्क करते करते वो सोचते हैं कभी टाइम मिलेगा तो आउटिंग के लिए हम भी निकल पड़ेंगे। वो ऐसा टाइम जो कि 100 ईयर्स अगो, वो कितना बेहतरीन टाइम हुआ करते थे। लोग हाफ डे काम करते थे और हाफ डे पूरे नेचर पे लेटे लेटे बैठे बैठे टाइम पास किया करते थे, कितना बेहतरीन हुआ करता था। आज वर्कलोड इतनी ज्यादा है, तो ये सोचते सोचते एक जगह मिला उनको, और वो जगह है बेटा गिल्सबार्ग इलिनॉइस। इतनी ब्यूटीफुल नेचर है, इतनी ब्यूटीफुल लोकेलिटी है, इतनी पीसफुल एरिया है, लोगों की भीड़ भाड़ नहीं है, और ग्रीनरी, ब्यूटीफुल ग्रीनरीज आर देयर। काश मौका मिल गया तो हम कभी जाएंगे, लुइसा को भी लेके चलेंगे। एग्जैक्टली वही चीज हुआ जब उस दिन बहुत ज्यादा वो डिस्टर्ब कंडीशन में थे, साबु ये पाथ पकड़ करके आ रहे थे, डीम लाइट का नजारा मिला, और डिम लाइट में इनको दिखने लगा, अरे ये तो ओल्ड टाइम है, अरे ये तो ओल्ड टाइम है। उनको लगने लगा कि यार हम पहुंच गए क्या, पुराने जमाने में पहुंच गए क्या। अब क्वेश्चन अराइजेस, देखो अब क्वेश्चन अराइजेस कि ये चार्ली को ये हेलुसिनेशन लाइक डिस्प्ले क्यों होने लगा। आ जाओ, हम लोग की जो ब्रेन है ना, ब्रेन भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ईगो, सुपर ईगो, ईड, ठीक है, ब्रेन। और ब्रेन में सुपर ईगो, ईगो और ईड, तो एक पार्ट है एग्जैक्टली दैट मींस एक पार्ट है जहां पे हम जो भी विश करते हैं, जो भी हम चाहते हैं, और वो चीज को हम बोल नहीं पाते हैं, अनफुलफिल्ड डिजायर कहीं हमारे मन में बैठा रहता है, स्टॉक हो जाती है फिर। ओके, सपोज मैं कहीं स्विट्जरलैंड जाके जो है, या फिर रशिया में जाके, हाँ, हम इंजॉय करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, राइट, कहीं हम दुबई में जाके जो है क्या नाम है, शेड बन के घूमना चाहते हैं, लेकिन पैसा, कुछ वर्कलोड, हमें जाने का मौका नहीं मिलता है। तो ये जो एक ख्वाब है, एक ड्रीम है, वो बैठा रहता है। ओके, सपोज मुझे किसी से खास प्यार हो गया, या फिर मुझे किसी सेलिब्रिटी से मुझे मिलने की ख्वाहिश है, बट मैं कैसे कहूँ उनसे, मैं कैसे दिखाऊं उनसे कि मैं भी आपका फैन हूं, मैं बहुत बड़ा चाहने वाला फॉलोअर हूं। तो ये जो अनफुलफिल्ड ड्रीम्स आपके ब्रेन में कहीं एक जगह रह जाती है, सप्रेस वे में रह जाती है, ठीक है। सप्रेस वे में रहते रहते कभी आपका ब्रेन सेल टायर्ड होता है, कभी आपका ब्रेन सेल टायर्ड हुआ, कभी आपका ब्रेन सेल वर्कलोड की वजह से टायर्ड हुआ, तो वो सारे सप्रेस्ड आइडिया आपके सामने विजिबल दिखेगा। ये दिस इज नॉट समथिंग हेलुसिनेशन लाइक, ये दिस इज नॉट समथिंग कि कोई ऐसी चीजें हैं, दिस इज मेडिकली प्रूवन सिम्टम्स ऑफ ए डिस्ट्रेस्ड माइंड, वर्कलोडेड माइंड। आ जाओ, तो वर्कलोड अगर है, डिस्ट्रेस या डिसअपॉइंटेड माइंड अगर है, तो वो कभी कभी उनके दिल दिमाग में जो छुपी हुई अनफुलफिल्ड ड्रीम्स हैं, वो ड्रीम वाला कोई चीज फिजिबल होने लगता है, दिखने लगता है। ये एक साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर है, और इसका ट्रीटमेंट भी है। तभी तो सैम को बुलाया गया था, तभी तो सैम ने उनको ट्रीट किया था। कोई जनरल मेडिसिन गैस्ट्रिक का दवा क्यों नहीं दे दिए थे, वही दवा क्यों, दैट मींस वही साइकियाट्रिस्ट ही क्यों ट्रीट किया था इनको, इज दिस वंस। तो नाउ राइटर इज टेलिंग दैट ये मॉडर्न वर्ल्ड है। अब इनका मेन जो लर्निंग पॉइंट्स है वो मैं बता रहा हूं आपको, एकदम लास्ट में मेन लर्निंग पॉइंट्स मैं बता रहा हूं। ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ये मॉडर्न वर्ल्ड है, ये मॉडर्न वर्ल्ड में
क्या मांगता है हमसे? मॉडर्न वर्ल्ड इज आस्किंग फॉर व्हाट? हाई रेपुटेशन, हाई ऑनर्स, पॉपुलैरिटी, सेलिब्रेशंस। और इस सेलिब्रेशन को छूने के लिए, इस पॉपुलैरिटी को पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को टर्न कर चुके हैं किसमें? मशीन में। वर्क आफ्टर वर्क, फिर मैं कुछ और ज्यादा अर्न करने के लिए क्या कर रहा हूँ? एक्स्ट्रा वर्क दे रहा हूँ। कहीं कहीं एक्स्ट्रा वर्क देने के लिए जो रेगुलर एक्स्ट्रा वर्क में दे रहा हूँ, तो फिर क्या होगा? ये बॉडी का एक पर्टिकुलर स्टेमिना है ना, बॉडी का एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है ना, कि कितना वर्क एफिशिएंटली कर सकता है वो। अच्छा, जब एफिशिएंसी के साथ हम वर्क भी करें तो फिर क्या होगा? कहीं ना कहीं हम मशीन बनने की जरूरत है। और जब इंसान को, दैट मींस सोशल ह्यूमन बीइंग को अब मशीन की तरह कन्वर्ट कर रहे हैं हम, तो फिर क्या हो रहा है? हमें भी डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है, हमें भी डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है। तो पोएट इज सॉरी राइटर जैक फिनी वांट्स टू सजेस्ट अस, वांट टू गिव दिस वैल्यू पॉइंट। आप मॉडर्न टाइम में वर्क करो, वर्क के पीछे भागो जरूर, लेकिन सोशल कांटेक्ट करते रहो, सोशल इंटरेक्शन करते रहो, लोगों की दुख दर्द में प्रेजेंट रहो, लोगों की दुख दर्द को समझो, फिर अपने प्रॉब्लम को शेयर करो। अपने प्रॉब्लम जब आप शेयर करोगे, दूसरों की प्रॉब्लम को जब आप सुनोगे, तो क्या होगा? आपके मन में जो छुपी हुई जो प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं पनप नहीं पाएगा, स्प्रेड नहीं हो पाएगा, ज्यादा डोमिनेटिंग डेंजरस नहीं हो पाएगा, ऐसे ओपन हुए ब्रस्ट आउट नहीं हो पाएगा। आप नॉर्मल बिहेव करोगे। तो ये सोशल इंटरेक्शन की जरूरत है, दोस्त यार की जरूरत है, लोगों के साथ बैठ के, फैमिली के साथ बैठ करके अपने प्रॉब्लम को शेयर करने की जरूरत है। मशीन मत बनो। फिर आप बहुत बड़ा तुर्रम खान नहीं हो गए हो, कहीं आप न्यूक्लियर फैमिली में रहने लगे हो या रह रहे हो, वहां से आप आ जाओ, जॉइंट फैमिली की ओर आ जाओ। या फिर अगर वहां रह रहे हो तो वहां के लोगों के साथ आप मिलो, मिक्सअप हो। अदरवाइज चार्ली की तरह आपको भी क्या हो सकता है? डिसऑर्डर हो सकता है। जब आप एक बार डिसऑर्डर हो जाओगे, दैट्स व्हाई राइटर इज टेलिंग मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ फियर। ये क्वेश्चन देखो, मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी, वॉर। मॉडर्न वर्ल्ड इज वॉर। वॉर कैसे है? देखो, अगर वॉर है, वॉर इज दैट काइंड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट समवन फॉर अनसर्टेन पीरियड ना। वॉर इज दैट फाइटिंग अगेंस्ट समवन और समथिंग एल्स फॉर ए अनसर्टेन पीरियड। इसका कोई अंत नहीं है। कब स्टार्ट होती है, कब खत्म होता है। फिर आ जाओ, हम लोग आज देखो, हम लोग आज नेचर के साथ भी वॉर किए जा रहे हैं। कैसे? ग्रीनरी को हटाते जा रहे हैं, हटाते जा रहे हैं, हम लोग का टारगेट पूरा कर रहे हैं। और हम लोग इनडायरेक्टली क्या पा रहे हैं? पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग। तो नेचर यहाँ पे, नेचर ऑलवेज ट्राई टू मेक ए बैलेंस हियर, और मैं ग्रीनरी को रिमूव करते जा रहा हूं। मेरा टारगेट एक ही है, क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं। लेकिन रिटर्न में हम लोगों को जो बैड रिपोर्ट, रिटर्न क्या मिल रहा है? पॉल्यूशन और ग्लोबल टेम्परेचर। तो यहाँ पे इन दिस स्टोरी में कैसे हम लोग वॉर कर रहे हैं? हम लोग वॉर कर रहे हैं हम लोग की फीलिंग के साथ, हम लोग की इमोशन के साथ। हम आज पैसे के चक्कर में, नेम एंड फेम के चक्कर में, हम अपने फैमिली वालों को छोड़ रखे हैं, दोस्त यार को छोड़ रखे हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ रखे हैं, सोशल इंटरेक्शन को छोड़ रखे हैं। ना कहीं लव, अफेक्शन, ऑनरेबल एक्टिविटी में हम कहीं शामिल हैं, ना कोई मेरे साथ जो है मिलना चाहते हैं। तो ये जो फीलिंग, ये जो इमोशंस आज हम कट कर रखे हैं और सिर्फ हम वॉर के पीछे भागे जा रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो मेरी लाइफ भी वॉर में है। मैं किसके साथ वॉर कर रखा हूं? मेरी हिडन इच्छा के साथ में वॉर कर रखा हूं। अनफुलफिल्ड, दैट मींस अनफुलफिल्ड डिजायर के साथ वॉर कर रखा हूं। और वही अनफुलफिल्ड ड्रीम पाने के लिए मैं अकेले अकेले भीड़ हटा करके अकेले छिप छिप के चल रहा हूं। मैं आज विक्टिम हो गया हूं, मैं आज विक्टिम हो गया हूं, मैं आज डिसऑर्डर्ड मैन बन गया हूं चार्ली की तरह, क्योंकि मैं वॉर फील्ड में हूं। कैसी वॉर फील्ड? मैं एक मशीन हूं इस वक्त, कुछ नहीं जानता हूं। मेरा एक टारगेट है, वो टारगेट है कि आई वांट टू बी पॉपुलर, आई वांट टू बी नेम एंड फेम पर्सन्स। तो इसीलिए इंसान अपने आप, अपने साथ वॉर कर रखा है, सारी चीज सेक्रीफाइस कर रखा है, सारी चीज कट कर रखा है टू फुलफिल वन टारगेट। और जब, जैसे कि मैंने बताया कि नेचर को कट करके, नेचर के अगेंस्ट में हम वॉर कर रखे हैं, और फिर नेचर को डिसअपियर करके हम वहां पे फ्लैट विक्ट्री, दैट मींस कंपनी तो बना दे रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हमें क्या मिल रहा है? रिटर्न, डेंजर, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग। सो बिल्कुल इसी तरह बैड थिंग्स हमें क्या मिल रहा है? जो हम अपने के साथ वॉर कर रखे हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट काट कर रखे हैं, क्या चीज मिला है हमें एज ए बैड थिंग्स? हमें भी मिला है लोनलीनेस, हमें भी मिला है शॉर्ट टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड, हमें भी रिटर्न मिल रहा है क्या? कभी चार्ली की तरह हम भी क्रेजी हो जा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द मेन इंफॉर्मेशंस, मेन एक्सप्लेनेशंस। और देखो, ये जो मैंने क्राइटेरिया बताया, ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताया, यही इसका असली पॉइंट्स है। आ जाओ, इसका जो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस स्टोरी प्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस।
तो इंटरसेक्शन कैसे हैं ना, जब समझाता है कि वो प्रेजेंट टाइम में है, दैट मीन्स मॉडर्न टाइम में है, और वो मॉडर्न टाइम में रहते रहते उनको पुराना पास्ट टाइम का सब कुछ दिखने लगता है, एंजॉय कर लेता है वो, इवन कि न्यूज़पेपर भी देखने लगता है वो। पॉइंट क्लियर? आ जाओ। और फिर वो रहते हैं यहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल न्यूयॉर्क सिटी, लेकिन उनकी ख्वाब में उनके, दैट मीन्स इन हिज ड्रीम ही टॉक्स अबाउट व्हाट, वो जो गेल्सबर्ग की जो है ग्रीनरी को, नेचर को डिस्क्राइब कर रहा है ना, ये जगह की जो है डिस्क्राइब कर रहा है, क्या है वहाँ पे, ब्यूटीफुल नेचर है, लॉन्ग लार्ज इनॉर्मस ट्रीज है, बच्चे लोग ब्रांच पकड़ करके खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, राइट। और फिर मेन एंड वीमेन आर सिटिंग टुगेदर देयर, मेन सिगर पी रहे हैं, और फिर जो है लेडीज लोग पंखा हाथ में लेके, राइट, डिटेल्स और इंसेक्ट्स वहाँ पे भमा कर रहे हैं फिर, ओके, देयर इज ए ग्रीन एंड ग्रीन लैंड, ब्यूटीफुल एरियाज। तो ये जो डिस्क्रिप्शन देना प्रेजेंट में रह करके, देखो प्रेजेंट टाइम के बारे में उसने कुछ भी नहीं लिखा, प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के आसपास रह रहा है वो, लेकिन उनकी पूरी दिल में क्या बसा हुआ है, गेल्सबर्ग इलियनिस के बारे में, ठीक है। सो हियर, सो दिस वे यू कैन से दैट प्रेजेंट में रहते हुए पास्ट का एंजॉयमेंट पाना करना क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस। बाकी जो क्वेश्चन है वो इजीली you can solve after this explanation, easily you can solve these questions. Thank you all.